بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار غوث اعظم کے اخلاق و عادات اور خوبیاں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا پرتو اور سیرت مستقیم کا مجموعہ تھا۔ آپ اتنے جاہ و جلال، عزت و مرتبہ والے اور زیادہ علم والے ہونے کے باوجود بلا جھجک غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے، فقیروں کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ پیش آتے، بڑوں کی عزت کرتے، چھوٹوں پر نظر عنایت فرماتے، اور کسی سے ملتے تو پہلے سلام کرتے، مہمانوں اور طلبہ کے ساتھ خواندہ پیشانی سے پیش آتے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیا کرتے۔ خلیفہ وقت یا کسی دولت مند شخص کے یہاں جانے کی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ نہ تھی۔ امیر شخص کی کبھی تعظیم نہ فرماتے تھے۔ خلیفہ وقت کے آنے کی خبر سنتے تو فوراً مکان کے اندر چلے جاتے، پھر باہر تشریف لاتے تھے تاکہ خلیفہ وقت کی تعظیم کو اپنے ارادے سے نہ اٹھنا پڑے۔ جب خلیفہ وقت کے پاس آپ کو خط لکھنے کی ضرورت ہوتی تو آپ یوں تحریر فرمایا کرتے تھے: یہ عبد القادر کا تجھ سے ارشاد ہے اور اس کا ارشاد تم پر جاری ہے۔ خلیفہ وقت اس خط کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر اور آنکھوں پر رکھتا تھا۔ متکبر، ظالم، نافرمان اور مالدار کے یہاں ہرگز نہ رکتے اور کبھی بھی بادشاہ وقت اور وزیروں کے یہاں نہیں جاتے۔ آپ کے زمانے کے رہنے والوں میں حسن اخلاق، بخشش و کرم معافی اور درگزر میں کوئی بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہ تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت گزار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار اور تعلیمات اسلام کے حقیقی وفادار تھے۔ اسی لیے آپ کا ہر عمل اسلام کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ الحب فی اللہ بل بغض فی اللہ پر عمل کیا جائے، یعنی انسان اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے اور کسی سے دشمنی کرے تو صرف اللہ کی خوشی کے لیے۔ یہ خوبی محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کائنات مکمل طور پر سید الانبیاء انور میں پائی جاتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکمل نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق سے محبت و عنایت، رحمت و نوازش کا سلوک کرنا آپ کی حیات مقدسہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کی روش کو اسی آفتاب جمال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشن کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے۔ امیر غریب ہر انسان کے دکھ درد میں مدد کرنا آپ نے اپنے لیے ضروری قرار دے رکھا تھا۔ کوئی شخص کتنا ہی صبر کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن صرف تقریریں یا نصیحتوں سے اچھے کردار والا نہیں بن سکتا۔ یوں تو پہلی منزل پر والدین، استاد اور پیر ہوا کرتے ہیں، جو انسان کے اندر اپنی پاکیزہ تربیت، اپنے عمل کا نمونہ، اپنی کوشش اور عقل کی غور و فکر سے بہترین خصلتوں اور اچھی عادتوں کی روح پھونک دیتے ہیں، جو انسانیت کی معراج ہے اور جو انسان کے لیے اچھے مرتبے پر پہنچنے کا سبب ہے۔ واقعات گواہ ہے کہ جن قوموں نے اپنے اخلاق و کردار بگاڑ لیے، ان کا انجام بہت ہی برا ہوا اور وہ قوم بری طرح نیست و نابود کر دی گئی۔ آج کے مسلمان ہی کو دیکھ لیجئے، تاج شاہی کھوئے ہوئے ابھی ایک صدی بھی نہیں گزری ہے کہ یہ ملک کی گری ہوئی قوم ہو گئی ہے۔ اچھے اخلاق والے ہی ترقی و حکومت کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اخلاق کی تعلیم دی ہے اور بانی اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق انسانی کا وہ نمونہ تھے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: بے شک اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ بزرگ اور عزت والے وہ ہیں جو زیادہ متقی اور نیک کردار ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں میزان پر سب سے زیادہ وزنی چیز انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے، اور فرمایا سب سے اچھے اخلاق والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک دو خصلتیں زیادہ پسندیدہ ہیں: سخاوت اور اچھے اخلاق۔
किसी से मीठे तौर पर बात करना भी नेकी है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे दो चीज़ें बुनियादी और पसंदीदा नज़र आती हैं, हुस्न अखलाक और भूखों को खाना खिलाना। अगर मुझको सारी दुनिया की दौलत मिल जाए तो मैं उसे उन लोगों की खिला दूं जो फाके में हों और हर शख्स से अच्छे अखलाक से पेश आता रहूं। हुजूर गौसे आज़म की मेहरबानी और बख्शिश इंसानियत की यह मेराज है, यानी इंसान को ऊंचे मर्तबे पर पहुंचने का जरिया है कि आदमी अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने की अपने दिल के अंदर तड़प रखता हो। जिस इंसान के दिल में रहम व करम का जज्बा न हो, बूढ़ों, कमज़ोर लोगों और मुसीबत ज़दा और जुल्म के मारों को देखने के बाद जिसका दिल बेकरार न हो जाए, वह इंसान कामिल नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम व करम करो से पेश आओ, आसमान व ज़मीन का पैदा करने वाला तुम्हारे ऊपर रहम व करम फरमाएगा। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अरसे भरी पर। रहम व करम व कुर्बानी करी जाए, अल्लाह ताला की खुशी के लिए की जाए तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात में गरीबों, बूढ़ों और कमज़ोरों के लिए रहम व करम का खास किस्म का जज्बा और तड़प पाई जाती थी और इससे आपकी रूह खुश होती थी और इससे आपको एक लुत्फ़ मिलता था। हज़रत अब्दुल्ला ज़ुबाई का बयान है कि सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक्सर ये फरमाया करते, मैंने अपने सारे अमाल को गौर व फिक्र करके सारी नेकियों की छानबीन की तो इस नतीजे पर पहुंचा कि भूखों को खाना खिलाने और दुनिया के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने से बढ़कर कोई नेकी नहीं। ना अम्ल मेरे पास दुनिया भर के खजाने होते तो मैं दुनिया के भूखों को खाना खिलाता रहता। हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न खिज़ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से रिवायत है कि एक मरतबा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र एक परेशान हाल फ़कीर पर पड़ी। एक इंसान को इस हालत में देखकर आपका दिल तड़प उठा और बिला ताख़ीर दरियाफ्त किया, क्या हाल है? फ़कीर ने दुखी दिल के साथ कहा, मुझे दरिया के उस पार जाना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मल्लाह ने मेरी मजबूरी जानने के बावजूद मुझे कश्ती पर बैठाने से इनकार कर दिया, जिससे मेरा दिल टूट गया है कि मेरे पास भी कुछ होता तो यह महरूमी क्यों होती। इत्तेफाक से सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी उस वक्त कुछ न था, मगर उसकी परेशानी आपसे बर्दाश्त न हो सकी और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। अचानक एक शख्स ने आकर आपकी खिदमत में अशरफियों से भरी हुई एक थैली पेश की। आप बहुत खुश हुए और फ़ौरन उस फ़कीर को बुलाकर फरमाया कि लो, यह थैली ले जाकर मल्लाह को दे दो और कह देना कि अब किसी फ़कीर को कश्ती में बैठाने से इनकार मत करना। काजी उल कुज़ात हज़रत अबू नम्र रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी शेख अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुझसे बयान फरमाया कि एक मरतबा सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला हज को तशरीफ़ ले गए। जब कस्बे आज़ला के करीब पहुँचे तो आपने क़याम का इरादा ज़ाहिर फरमाया और खादिम को हुक्म दिया कि इस कस्बे में जाकर मालूम करो यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब व परेशान कौन है। जब सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे गरीब मुसलमान का मकान मालूम कर लिया, फिर आप उस गरीब के मकान पर तशरीफ़ ले गए। देखा कि एक बोसीदा मकान में है और एक बड़े मियाँ और एक बुढ़िया और एक लड़की मौजूद है। इस्लामी तरीके के मुताबिक सबसे पहले सलाम करके उन बड़े मियाँ से उस टूटे हुए मकान में ठहरने की सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त तलब की और फिर उसी टूटे मकान में ठहरे। और जब मुसलमानों को यह मालूम हुआ कि पीरों के पीर बेसहारों के सहारे सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक गरीब मुसलमान के गिरे पड़े मकान पर ठहरे हुए हैं, फिर तो सूफियों, आलिमों, पीरों और बड़े बड़े मालदारों और दूसरे अवाम की सरकारें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक भीड़ लग गई
और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज़ किया गया कि या तो आप हमारे यहाँ ठहरें या किसी दूसरे जगह ठहरें, यहाँ तो आपको तकलीफ़ होगी। मगर सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी की बात न मानी और उसी गरीब मुसलमान के यहाँ ही ठहरे रहे। आखिर में उसी गरीब के घर पर लोगों ने सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नजराने पेश कर शुरू कर दिए और आन की आन में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में को माल और दौलत के ढेर लग गए। खुसूसन वक्त के पीरों और अमूमन मुसलमानों को सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रहम व करम के भरपूर अमल से सबक लेना चाहिए कि जब सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी अजीम शख्सियत के मालिक होते हुए एक परेशान के यहाँ क़याम फरमाने में कोई शर्म महसूस नहीं की और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और शान की कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर किसी और कोई है ख्याल करने का क्या हक पहुँचता है कि वह शख्स यह सोचे कि इज्जत तो किसी मालदार के यहाँ किसी अच्छी ही जगह ठहरने पर है। बहरहाल गरीब नवाजी का यह बहुत बड़ा मुजाहरा है। हज़रत शेख अब्दुल्ला इब्न शुएब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का बयान है कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों, कमज़ोरों और मिस्कीनों से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अक्सर फरमाते थे कि अमीरों से तो सभी मोहब्बत करते हैं, बेचारे गरीबों का कौन हाल पूछने वाला होता है। क्या मैं भी इन गरीबों से मोहब्बत ना करूं? बहुत सी रिवायतें गवाह हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गरीब परवर थे और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार आलिया में बराबर तौर पर अमीरों और गरीबों की इज़्ज़त की जाती थी। इस बात में भी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार थे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।